Am I audible? Yes, we are live now. Am I audible? Please let me know in the comment section if everything is working fine. Please let me know so that we can start the session. So 4 people have joined. Please confirm me everything is fine. The voice is audible. Please type in the chat section so we can start with the class. And you're going to give your responses in the chat section only. Okay, and this is the temporary arrangement, so slowly we'll move to the next arrangement. Take another this online thing. Please reply in the chat section, live chat section, that everything is fine. Type yes if everything is fine. Type yes, yes, if everything is fine. Okay, no reply is coming. I hope everything is fine. Let me check it again. Please reply in the chat section. Yeah, everything is fine. So we are starting the class. Okay, we are starting the class, and you're going to give the responses in the chat section. So talking about the Indian polity, so this is the topic, and as sir told me that you guys have done with the preamble, so you have little bit knowledge, you have some knowledge regarding the Indian polity कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे सारी चीज़ें रहेंगी, आपको उसके बारे में अच्छे से पता है. ठीक है. Now first of all I'll talk about the index. ये this PDF, this PPT I'm going to provide you. Okay, so not to worry about, you don't need to write anything. Okay, you just need to go through the syllabus. Now these are the topics that we are going to discuss in the 10 to 15 classes. ठीक है ना, वट एवर क्लासेस डेडिकेटेड जो भी क्लासेस हैं. अच्छा, सबसे पहले ये बता दीजिए किसी को लैंग्वेज का बैरियर तो नहीं है ना. ठीक है, एवरीवन इज कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज इंग्लिश. इसमें मैं थोड़ा सा हिंदी भी यूज़ करूँगा, बट आवर क्लास विल बी मोर स्ट्रिक्टली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द इंग्लिश. सो is everything okay with it? Whoever is watching, please let me know in the comment section. Chat में आप लिख सकते हैं, live chat में. Give me the reply in that chat. Okay, no one is giving reply. Okay, maybe you are a little bit shy. ठीक है, कोई बात नहीं. So these are the topics that are given below. First of all, we'll talk about the salient features of the constitution. वो salient feature मतलब कि हमारा जो constitution है, जो संविधान है, ठीक है, उसमें कौन कौन से important features हैं, मतलब why the Indian constitution is special. So this is the special features. Next is the schedules and the sources of the constitutions, from where we have borrowed the constitution. ठीक है ना, कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया इसके बारे में बात करेंगे. Preamble is something that you have already done. ठीक है, प्रियम्बल के बाद में आप बात कर चुके हैं. नेक्स्ट इज द यूनियन एंड टेरिटरीज. सो वी हैव द यूनियन एंड वी हैव द टेरिटरीज एंड विल टॉक अबाउट इट लेटर. ठीक. नेक्स्ट इज द सिटीजनशिप. इन इंडिया वी हैव द सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट.
कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया? दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटेन से लिया गया हुआ है. वी डोंट हैव द डुअल सिटीजनशिप, सो दिस इज वन थिंग टू. ओके, वी हैव द सिंगल सिटीजन कॉन्सेप्ट. कहाँ से लिया गया है? ओके, हाउ वी कैन एक्वायर द सिटीजनशिप, हाउ आर सिटीजनशिप कुड बी रिनाउंस और रिलिंक्विश. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द फंडामेंटल राइट. ओके, सो विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं? व्हाट आर द justiciable fundamental rights? What are the fundamental rights that are given only to the citizen of the country? Okay, and what are the fundamental rights that are given to the foreigners also? तो इसके बारे में बात करेंगे. DPSP, Directive Principle of State and Policies. Fundamental duties. Okay, fundamental duties are those duties that you have to perform. करनी पड़ेंगे आपको. You should perform actually. And then the amendment to the constitution. If you want to change the constitution, so what should be the way? Okay, so this there we have classified some of the things. Basic structure. You must have heard about the केशवानंद भारती केस, KBC. ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं KBC, केशवानंद भारती केस. सो इन द KBC केस, केशवानंद भारती केस, जिसका जो जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को आया था. ठीक है. सो दे हैव द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द बेसिक स्ट्रक्चर. उसके बारे में बात करेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट द फेडरल सिस्टम. ठीक है, फेडरल सिस्टम. और गवर्नमेंट मीन्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट टोटली फेडरल, एक्चुअली इट इज़ क्वासी फेडरल. तो उसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं. विल टॉक अबाउट इट लेटर. नेक्स्ट इज द इमरजेंसी प्रोविजन. सो वी हैव द इमरजेंसी प्रोविजन. ठीक है, कि अगर इमरजेंसी लगानी है तो कैसे लगेगी? जैसे टॉकिंग इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल इमरजेंसी. सो नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड 3 times, 1962, 71 एंड 75. ठीक है, इंडो चाइना वॉर, पाकिस्तान का, और 75 इंटरनल डिस्टर्बेंस. नेक्स्ट, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. What type of relations the central is having with states? These are known as the central and state relations. Okay, interstate relation, एक state का दूसरे state से. Next, executive, legislature, judiciary. Okay, these are the 3 organs of the government. Okay, executive, legislature and judiciary. Okay, so executive is responsible towards legislature. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे. देन दी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबके बारे में बात करना है. देन वी विल टॉक अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनसिपालिटीज, यूनियन टेरिटरीज. हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज वी हैव? रिसेंटली 2 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म्ड, है ना, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. नेक्स्ट इज द constitutional body. So there are a lot more bodies. For example, you can take the example of the what I call as the Election Commission of India. So Election Commission of India, UPSC, है ना, Union Public Service Commission. So these all are the constitutional bodies. Next is the non-constitutional bodies. So there are some bodies which are non-constitutional also. ठीक है, just like for example अगर आप बात करो NGT, National Green Tribunal, तो constitutional bodies कौन सी होती हैं? Constitutional bodies are those bodies that are mentioned in the constitution. ठीक है ना, and non-constitutional bodies are those bodies that are not mentioned in the Constitution of India. ठीक है ना, maybe those bodies are formed. For example, if I talk about the NGT, National Green Tribunal, so this is formed by the act of the Parliament. ठीक है, by the act of the Parliament. So these are the statutory body. Statutory body. Okay, so whatever, whenever, look, अगर बॉडी की बात करूँ, ठीक है, या फिर किसी कमीशन, किसी एक बॉडी की बात करूँ, ठीक है ना, या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस बॉडी कुड बी ऑफ द 3 types. One thing is the constitutional body, if it is framed by the constitution, or if it is mentioned in the constitution, then it is a constitutional body. ठीक है. Next is the statutory body, as I have stated, statutory body. So if the body is stated in the, or the body is made by the law of the parliament, ठीक है ना, by the parliament. If we have passed a law, ठीक है ना, and then we have, जैसे for example GST council, तो इसको पार्लियामेंट के लॉ से बनाया गया हो ना, सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, फॉर एग्जांपल NGT. नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी. एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है ना, जैसे GST के इसमें एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है कि जो बॉडी एग्जीक्यूटिव ने बनाई है. व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो वी आर नाउ मूविंग ऑन द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द salient feature of the constitution. Salient feature of the constitution. Now, as we know that India is a very gigantic, very vast country. Okay, hence it needs, and the people living in India, they are also very culturally very diverse. Sir, kindly off the echo. Echo is coming. Echo is coming. Okay, how can I off the echo? Echo, I don't think so कि मतलब echo होना चाहिए. इस बहुत सारा echo है क्या? अच्छा, let me close my this
remove my blue BT. Is it okay now? Tandy, Andy, is it okay now? Is my voice more audible now? Please let me know. Is it okay? Please let me know if everything is fine now. Okay? Please let me know if everything is fine. Tande Andy. Now, so talking about the people living in India, we are very diverse throughout the length and breadth of the country. Yes, sir. ठीक है अभी सब सही है. Thank you. Now, so whoever living in India, the people living in India, they are very diverse from the north to south, from the east to west. Okay, so because there are a lot of the diversity. Okay, thank you. So because there's a lot of the diversity, hence the constitution need a diverse constitution so that we can address the grievances of every people. Okay, so we can address the needs of every people, and hence the constitution will going to the constitution we have made is the lengthiest written constitution. Okay, so it is the lengthiest written constitution. Now presently if I talk about, so originally there were 395 articles. Now we have about 465 articles, and it is more adding up, piled up. Everything is fine now. Thank you so much. Okay, so it is increasing day by day, है ना? We are making the amendments and everything. So the articles talking about, now articles are further divided into the 25 parts. ठीक है, initially there were 22 parts only. Now it came into 25 parts. ठीक है ना? And initially there were 8 schedules. Now we have the 12th schedule. So slowly it is becoming the bigger and bigger according to the need of the day. ठीक है ना? Now reason why was it was the lengthiest constitution, as I have already stated, because the geographical factors. The geography of India is so vast, and hence it is it. Next is the historical factors, is the Government of India Act 1935, because the lot of the content or lot of the things that we have borrowed is from the Government of India Act 1935. Hence this is also known as the mini constitution also, you can call it. And mini constitution is something which is also the 42nd Amendment Act 1976. 42nd Amendment Act 1976 is also known as the mini constitution. ठीक है ना? तो इसको ये बोल सकते हैं. Next is the single constitution. So in India we don't have any separate constitution for the state and center both. Okay, we have union, means we have the single constitution. ठीक है ना? In US, if you talk about the US, so in US you have the different constitution. ठीक है ना? वहाँ पे स्टेट के लॉज अलग होते हैं और उसके बाद जिस सेंटर के लॉज अलग होते हैं, इस तरह से होते हैं. बट इन इंडिया इट इज़ नॉट द केस एनीमोर. In the same manner, इंडिया में फॉर एग्जाम्पल जो सिटीजनशिप है, इट इज़ द सिंगल सिटीजनशिप. पर यूएस में कैसी है? डुअल सिटीजनशिप होती है. मीन्स यूएस में यू गोइंग टू बी द यू हैव द सिटीजनशिप ऑफ द यूएसए ऑल्सो, एंड यू हैव द सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट ऑल्सो वेयर यू आर लिविंग. ठीक है ना? नेक्स्ट इज द डोमिनेशन ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज. इसका मतलब क्या होता है? जितने भी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड. ठीक है ना? एडवोकेट्स, ऐसा बात कर सकते हैं. नेक्स्ट, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत सोर्सेज से लिया गया हुआ है. जैसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? भीमराव अम्बेडकर ही बोरोड लॉट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द constitutions of the world. So he has seen the constitution of the world, है ना? Because ये अच्छा है ना. अगर suppose for example किसी और की constitution में you have some good things, so it is not you should not be ashamed of to taking those good things in your constitution. Or if you see the good things in somebody else, you should not be ashamed, है ना, to borrow those things in your character. So no problem at all. And obviously Government of India 1835 and the philosophical part जो थे वो हमने अमेरिकन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस लिया हुआ है. philosophical part is we have taken from the American and the Irish constitution, and the political part we have taken from the British constitution. So whatever political part we have was taken by the British constitution, from the British constitution. Why? Because the British were only those people who ruled on us, है ना? ब्रिटिश वर ओनली दोज पीपल हु रूल ऑन. जैसे अगर कोई पूछे कि वी हैव टेकन द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेशन हमने लिया है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये क्यों लेके आए हम? ठीक है ना? क्यों लेके आए? वी हैव टेकन बिकॉज वी वर विटनेसिंग दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, फ्रॉम लास्ट 150 और 200 ईयर्स.
ना, ड्यूरिंग द एरा ऑफ द ब्रिटिश. तो ब्रिटिश के एरा में वी हैव सीन दिस बाइकैमरल लेजिस्लेशन एंड वी हैव सीन हाउ दिस वर्क्स, and because so we have the familiarity with it, and hence we have adopted the British parliamentary system. ठीक. Next is the blendability and the flexibility. So our constitution is not neither so much rigid nor much flexible. ठीक है ना. So time to time we can amend it. For example, there's some provisions which can be very rigid to amend. For example, for some provision, if you want to make some constitutional amendment, then you need to have the two-third of the member present in the voting. Okay, supported by the 50% of the total strength. मतलब this is the criteria. This is known as the special majority. Okay. Next, if you want to, for example, if you want to bifurcate a state, so if there's a state, just like UP is separated from the Uttarakhand is separated from the UP. Uttarakhand is separated from the UP. ठीक है ना. या फिर you can say कि many northeastern state, many northeastern state, they are carved out from the Assam. So if there's a bifurcation, trifurcation, okay, of the state, we need to do, we can do it by the simple majority. So some laws can be passed with a simple majority, some laws can be passed with a special majority. So this is what, this is the witness that this is the witness that we have the rigidity and flexibility of the constitution both simultaneously. Next is the federal system and the unitary wise. So in India we have the federal system also and unitary wise also. What is the federal system? Federal system is where the center and state, where the center and state work, where the center and state work together. So federal system is the system where the center and state works together. But in some cases, in what cases? In, let's say there's an emergency. Let's say there's an emergency under the Article 352, the national emergency. There are three type of emergency: national emergency 352, state emergency 356 and 360, the financial emergency, जो कि अभी तक नहीं लगी है. ठीक है. नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है ना, 62, 71 and 75. Now, so talking about unitary wise, तो हमारे यहाँ पे वी हैव द फेडरल सिस्टम, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी दिस फेडरल सिस्टम चेंज इटसेल्फ इनटू द यूनिटरी फॉर्म. ठीक है ना. तो हमारे क्या है, दोनों का ब्लेंड है. सो वी हैव द फीचर्स ऑफ द फेडरेशंस एंड वी हैव द फीचर्स ऑफ द यूनिटरी ऑल्सो. ये दोनों सारी चीजें हैं. नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड. नाउ यू नीड टू हैव द क्लैरिटी रिगार्डिंग एवरीथिंग. Why we have the parliamentary why we have parliamentary form of the system. Okay, क्यों ही लिया? Because I have said that this was the system which was there in the Britain, and this was the system which was working in India from the last 150 years. So Indians have familiarity with the system. Indians know very well how this system works. They know the know-how of everything. Hence we have adopted the parliamentary form of government. ठीक है. So these are some of the things. Now what are the features of the parliamentary form of government? यहाँ बताया गया presence of the nominal and the real executive. So in India, in the parliamentary form of the government, there are two executive. One is the nominal, second is the real executive. What is the difference between the nominal and the real executive? Nominal executive means only नाम. You can relate nominal with the name. सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव है, उसके पास कोई काम नहीं है, ऐसा बात कर सकते हैं. मतलब फॉर जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, नॉट फॉर एग्जाम्पल, द एक्चुअल थिंग इज द प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड. ओके, नॉमिनल हेड. देन हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव हेड, so he will going to take the every decision, and he is the president is the nominal head. Majority party rules, whoever get the majority will rule. And next is the collective responsibility of the executive to the legislature. So there will be collective responsibility of the executive to the legislature. ये क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं. For example, if I talk about it here, for example, this is the whole legislature. ठीक है ना. legislature में there will be all the MP will be there. उसी legislature के अंदर एक पार्ट होगा, उसको बोल देते हैं executive. So this is the executive. And executive में क्या होता है? Council of Minister headed by the Prime Minister. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मेक्स द एग्जीक्यूटिव. और एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको. वन थिंग इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी ऐसा बनता है कि ये दिस इज अ बिग ब्रैकेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके अंदर होता है कैबिनेट. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द एग्जीक्यूटिव.
ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी एक सब ब्रैकेट होता है, उसको बोलते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट इट इज द स्मॉलर फॉर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, इट इज द कोर बॉडी यू कैन से। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग, डबल मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर। सो मिनिस्टर की डबल मेंबरशिप होती है, हाउस की भी होती है और उसके बाद आपकी पार्टी की भी होती है। ठीक, नेक्स्ट इज द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा या चीफ मिनिस्टर होगा उसकी लीडरशिप होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ दिस इज वन PYQ। ये क्या है ना, ये PYQ है, बहुत सारे PYQ मिलेंगे, एक ये PYQ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में क्या कि the ministers they have the collective responsibility towards what? So the ministers have the collective responsibility towards the Lok Sabha. Please remember this fact, ministers have collective responsibility towards the Lok Sabha, but ministers have individual responsibility towards the president. प्रेसिडेंट कितना होता है, प्रेसिडेंट अकेला होता है ना, सो इंडिविजुअल में क्या हो गया, इंडिविजुअल मीन्स अकेला, ओनली वन। So the president have the ministers will have the individual responsibility towards the president and ministers will have the collective responsibility towards the Lok Sabha. ठीक है, next is the dissolution of the lower houses. Dissolution of the lower houses. You know the lower house which is also known as the Lok Sabha, which is mentioned under the article 81. Okay, it is dissolved after every 5 years. But the upper house which you call as the Rajya Sabha with the article 80 never dissolved. ठीक, वो dissolve कभी होता है, it is a permanent house, it is a permanent house. 2/3 of the people of it will retire every second year, 2/3 of the people will retire. ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल मैंने बता दिया, यहाँ पे अगर बात करूँ दिस इज इट, ये हो गया हमारा लोकसभा का आर्टिकल, दिस इज द राज्यसभा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 117, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल 171 एंड अबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स 169। ठीक है ना, स्टेट में सारे स्टेट में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली बट सम स्टेट हैज द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो। ठीक है ना, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन विच स्टेट हैज द लेजिस्लेटिव काउंसिल, देयर 7 स्टेट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। सो अभी हम बात these all are the features of the constitution, these all are the features of the constitution. So now fifth feature is the synthesis of the parliamentary sovereignty and the judicial supremacy. Now what I'm talking about here, देखो हमने क्या किया, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में we have in the British system we have the parliamentary sovereignty. So means in the Britain the parliament is the sovereign, so whatever law the parliament can pass, okay, whatever law parliament can pass will become the law of the land. But in USA there's a judicial supremacy. वहाँ पे कोर्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कहने का मतलब है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट बहुत ताकतवर है, बट इन द US द जुडिशरी इज वेरी पावरफुल। गेटिंग अ पॉइंट? हेंस व्हाट वी हैव डन, वी हैव बोरोड एवरीथिंग, है ना, जो भी हमको अच्छी लगी हम लेके आए। सो हेंस व्हाट वी हैव डन, वी हैव बोरोड द सिंथेसिस, मीन्स यू कैन से द ब्लेंड or the mixture, we have borrowed the mixture, the blend of the parliamentary sovereignty with the judicial supremacy. दोनों को लेके आ गए हम लोग। ठीक है, हम कोई एक को लेके नहीं आए, we have borrowed the both. ठीक है ना, so this is what we have done. Apart from that, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि अमेरिकन प्रिंसिपल से लेके जुडिशियल सुप्रीमेसी। नाउ वन मोर स्टेप इज हियर इज द जुडिशियल रिव्यू। व्हाट इज द जुडिशियल रिव्यू? नाउ वी हैव वन थिंग, जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल वी हैव द legislative, we have the executive and the judiciary. Legislative, executive and judiciary. Now judiciary needs to make checks and balance on the legislative, ताकि ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना दे। ठीक है, लेट्स से पार्लियामेंट मेक अ लॉ, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल द पार्लियामेंट हैज मेड द लॉ रिगार्डिंग द व्हाट यू कॉल एज द इलेक्टोरल बॉन्ड। Now judiciary has given it a consideration and came on the conclusion that it is not for the welfare of the larger public good and made it unconstitutional. So this is what known as the judicial review. So judicial review का मतलब क्या होता है? The judiciary can check what type of the laws the parliament is passing. So this is means checks on the separation of the power. Okay, so this is known as judicial review. So judiciary can make a review of the law what is the parliament is passing. Next is the judiciary to supervise the legislative and the executive branch, दोनों को करेगी। ठीक है ना, और मैंने बताया कि executive is the part of the legislature only, है ना, मैंने बताया ना यहाँ पे, ये कहाँ बताया मैंने आपको, यहाँ पे नहीं बताया, हाँ ये बताया ना कि legislative जो executive होता है it is the part of the legislature only.
ठीक है ना। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द लॉ। कोई भी लॉ, मैंने बताया ना, कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया और वो इनकंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द जुडिशरी विल केम एंड इंटरफेयर. Okay, why? Because the judiciary is what? Judiciary is, or you can say the Supreme Court. Supreme Court is the guardian of the constitution, and Supreme Court is the protector of the fundamental right. ठीक है, Supreme Court is the guardian of the constitution and Supreme Court India is the protector of the fundamental right. ठीक है, ठीक है. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर विद द पार्लियामेंट. ठीक है, जो पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज दी व्हाट वी हैव. और कौन कौन से फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सारे फीचर्स पढ़ रहे हैं अभी हम कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स है और क्या फीचर है. इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड and independent judiciary. What is the meaning of independent judiciary? First of all, independent judiciary means that judiciary is not biased. ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है this judiciary will govern by the law of the land only. ठीक है. Next is the integrated judiciary. What is the meaning of integrated judiciary? Let's say you have some case in the lower Supreme Court, है ना, या बेसिकली आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे आपका कोई केस पेंडिंग है. नाउ इफ यू आर नॉट गेटिंग रिलीफ फ्रॉम हियर, नाउ यू कैन मूव द हाई कोर्ट with the same case. With the same case, you can move to the High Court. Okay. Now, even if you are not getting this relief from there, you can then move to the Supreme Court. So we have the integrated judiciary. So the same case could be transferred from the lower to the upper court. So this is the meaning of the integrated judiciary. So in India, we have the integrated judiciary and independent judiciary. ठीक है. So we have the integrated and independent judiciary. All the expenses of the Supreme Court and High Court will be charged on the consolidated fund of the India. ठीक है ना, they are charged on the consolidated fund of India. इसको बारे में बात करेंगे. 3 फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी अकाउंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं. नाउ अब बात करेंगे व्हाई द फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल राइट्स. सो फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर सैक्रोसेंट एंड बिकॉज दे आर फंडामेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल. Please pay attention on my word. Why the fundamental rights are called as the fundamental right? Fundamental rights are called as the fundamental rights because they are fundamental for the growth of the individual. Just like right to life, है ना, जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार. These are the very fundamental right for the these are very necessary right for the growth of the individual and hence they are called as the fundamental right. For example, right to equality, है ना, ताकि कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो. right to freedom, okay, right against exploitation, कोई तुम्हें exploit ना कर सके, है ना, hazardous फैक्ट्री में काम करने के लिए किसी. right against religion, so whatever religion you have the right to protect it. right against education of the minorities. okay, and last is the remedies. okay, remedies. now constitutional remedies इसको बोला गया है, इसको बोलते हैं the heart and soul of constitution. So the constitutional remedies, that is article 32, was called as the heart and soul of the constitution by the B.R. Ambedkar. So B.R. Ambedkar बाबा साहब ने आर्टिकल 32 को राइट टू लाइफ इज राइट, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है. लेकिन आज की डेफिनेशन में इन टुडेज सिनेरियो आर्टिकल 21 हैज बिकम द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना, एंड इट इज द मोस्ट इवॉल्व्ड राइट यू कैन से. ठीक है ना. फंडामेंटल राइट प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. अभी जब डेमोक्रेसी पढ़ेंगे आप, डेमोक्रेसी मतलब क्या, जैसे आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है ना, तो डेमोक्रेसी जो होती है वो भी कहते हैं, जैसे हमने अभी आपने जो प्रियम्बल में पढ़ा है, प्रियम्बल में आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में जो आपकी क्लास हुई थी वहाँ पर आपने पढ़ा था कि प्रियम्बल में सोशलिज्म होता है, यानी कि देयर इज अ सॉवरेनिटी, है ना, रिपब्लिक पढ़ा था आपने, और उसके बाद जस्टिस पढ़ा था. तो उसी तरह से जस्टिस के भी 3 टाइप होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल. उसी तरह जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के भी 3 टाइप होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल. तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बचाता है या उसको सिक्योर करता है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेट्स से राइट टू कास्ट वोट अंडर आर्टिकल 326, है ना, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. ठीक है ना, या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अंडर आर्टिकल 326. ठीक है ना, इसी को बोलते हैं राइट टू वोट, राइट टू
वोट। पहले जो राइट टू वोट की एज थी वो कितनी थी, वो थी 21 साल। 21 साल से राइट टू वोट की एज वी हैव रिड्यूस टू 18 ईयर्स वाया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। सो वाया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 वी हैव रिड्यूस्ड द राइट टू वोट एज 18 ईयर्स। ठीक है। और क्या क्या फीचर्स हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिसिएबल? जस्टिसिएबल मीन्स कि if justiciable means if anyone violates your fundamental right you can directly go to the supreme court। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर राइट्स के बारे में बात किया जाए तो राइट्स के मामले में यू कैन से द हाई कोर्ट दे हैव मोर राइट देन द सुप्रीम कोर्ट। व्हाई? बिकॉज फॉर द हाई कोर्ट यू कैन गो इफ you have any violation of the fundamental right and legal right। ठीक है, legal right, तो you can go to the high court but under article 226 but supreme court में जा सकते हो only for the fundamental right violation under article 32। ठीक है, वैसे तो मैं राइट के बारे में आगे बताऊंगा, अभी बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब वही बता दूंगा, अब यहाँ नहीं बताऊंगा, अदरवाइज यू विल गॉट कंफ्यूज। ठीक है, पर ये थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। सो जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। दिस मीन्स इफ anyone violates your fundamental right, if the state violates your fundamental right, you can directly approach to the Supreme Court under the writ किसमें मेंशन है? अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स क्या थे? फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स जो आपको दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी, ये क्या है? ये क्या है? दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस टू whom? इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट कि दैट हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शंस। सो दीज आर द डायरेक्टिव्स मतलब instructions। So directive principles of the state and policy is, in short, this is known as the DPSP। So DPSP mentioned under the article 36 to 51। फंडामेंटल राइट किसमें है? 12 से 35। ठीक है, फंडामेंटल राइट 12 से 35। क्लियर? सो डीपीएसपी इट इज 36 to 51। ये क्या बताता है? ये प्रमोट करता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। Please pay attention. DPSP is promoting the social and the economic democracy. But what the fundamental rights were promoting? Fundamental rights were promoting the political democracy. Okay? Fundamental rights, they were promoting the political democracy. Okay? Fundamental rights, they were promoting the, sorry for the background noise, it's Diwali. Now, so the fundamental right, they were promoting the political डेमोक्रेसी। बट डीपीएसपी किसको प्रमोट कर रहे हैं? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया? वाया आर्टिकल 326। मान लो फॉर एग्जांपल, है ना, यूनिवर्सल राइट सफरेज की, सबको राइट टू वोट का अधिकार है। ठीक है ना, और ये क्या कर रहे हैं? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है? सोशल डेमोक्रेसी मतलब कि सब लोग साथ हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास काइंड ऑफ। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है? कि गवर्नमेंट के पास फॉर एग्जाम्पल कोई फंड आया, पैसा आया, तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। There should not be any concentration of the wealth. For example, Article 39 of the DPSP stated very clearly there should not be any concentration of the wealth. ठीक है ना? Next is the aim to establish the welfare state, not the justiciable in the nature. So this fundamental right, this aims to establish the welfare state. Okay, and apart these are not justiciable. So you cannot say, जैसे मैंने बात किया ना कि Article 39 says that there should not be any concentration of wealth, but you know it very well कि there is a concentration of wealth. क्या है? There is concentration of wealth, है ना? There's lot of the wealth to the top 1%. There's lot of the wealth to the top 1%, and you know it very well. Clear? So hence this is non-justiciable. Non-justiciable means कि if the government is not providing you enough social schemes or government is not giving you economic justice, है ना? Top 1% has much power. Top 1% has much money. So you cannot go to the Supreme Court saying that no sir, I don't have the money, and these people they have lot of the money. These people have the 10%, or these people have the 80% of the country's wealth. The Adani and Ambani, they have the 80% of the country's wealth. So you cannot go to the Supreme Court. So you cannot go to the Supreme Court means they are not justiciable. But fundamental right, they are justiciable. Fundamental right, they are justiciable. So you can go to the Supreme Court. Okay.
सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, इट्स दिवाली, आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है ना, पीपल आर स्टिल सेलिब्रेटिंग इट आफ्टर 2 days. सो फंडामेंटल राइट दे आर जस्टिसिएबल, बट डीपीएसपी दे आर नॉन जस्टिसिएबल, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32. क्लियर हो गई? नेक्स्ट बात करते हैं, these DPSP they have categorized into the three parts: socialist and Gandhian and liberal intellectuals. Next, duties. Now, fundamental the DPSPs are the instructions for whom? For the state to perform the activities. A type of activities कि आपको गवर्नमेंट कैसे चलानी है, ठीक है ना, रूल्स कैसे बनाने हैं, दिस इज मेंशन इन दी डीपीएसपी. सो डीपीएसपीज आर फॉर द स्टेट और फॉर द गवर्नमेंट. But fundamental duties, these are for the individuals, for the you and me, that how we should behave in this society, in this civilized society. These are the fundamental duties. So these are the duties that we have to perform, जो हमें perform करनी है, ठीक है ना. These are the fundamental duties. Now what are the fundamental duties? ठीक है ना. It's like right and the duties of कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है. फिर सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी. अर्लियर देवर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद इंक्रीज करके इसको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कर दी थी, ठीक है. और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे की थी? बेसिकली एक अमेंडमेंट हुआ था नोन एज द 86th अमेंडमेंट एक्ट. 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसमें वी हैव इंक्लूडेड 1 मोर फंडामेंटल ड्यूटीज. सो दिस बिकम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हो गई थी, ठीक है ना. नाउ सबसे पहले बात आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थी? नहीं. सो फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली. इसको इंक्लूड किया गया, मेंशन किया गया है वाया द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. सो फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड वाया द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया. नो, दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस एक्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हमने इंप्लीमेंट किया था, इसलिए इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. अ सेक्युलर स्टेट, दिस इज ऑल्सो वन क्वालिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अ सेक्युलर स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? सेक्युलर स्टेट मीन्स दैट इन इंडिया वी डोंट फॉलो एनी ऑफिशियल रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल इन द पाकिस्तान दे हैव अ स्टेट रिलीजन, है ना, इस्लाम. बट इन इंडिया वी डोंट फॉलो एनी state religion. So you can follow whatever religion you want. Okay, it is up to you, it is up to the will of yours. तुम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो. स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, स्टेट सेक्युलर है. अगर स्टेट को 5 रुपये भी खर्च करने हैं किसी एक रिलीजन के प्रमोशन में, तो वो 5 रुपये सारे रिलीजन में बांटेगी, ठीक है ना. तो ये बात करते हैं. तो इंडिया में क्या है? इंडिया में वी हैव अ सेक्युलर स्टेट, वी आर सेक्युलर स्टेट. पर सेक्युलर इसको स्टेट नहीं बोलते, इसको क्वासी सेक्युलर बोलते हैं. अगर आपसे प्रश्न आया क्या इंडिया एक्चुअल में सेक्युलर स्टेट है, सो नो, इंडिया इज नॉट अ सेक्युलर स्टेट इन टोटो इंटायरली, ठीक है. इंडिया इज अ क्वासी सेक्युलर स्टेट. क्वासी सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है? क्वासी सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर जरूरत पड़ी, इफ इट इज नीडेड, देन द स्टेट विल इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर. For example, you can take the example of the Sabrimala temple. So in the Sabrimala temple, the people, the women of those of the vicinity, they were not allowed to enter in the temple premises, ठीक है ना, ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल. बट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, बोला ये तो गड़बड़ है थोड़ा सा, उनको भी जाना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है. देन सुप्रीम कोर्ट ने इंटर करके उसको रिमूव किया, एंड देन सुप्रीम कोर्ट परमिटेड द विमेंस, है ना, इवन ड्यूरिंग दियर मेंस्ट्रुअल साइकिल टू एंटर इन द टेम्पल. सो इंडिया में क्या है? इंडिया में पूरी तरह से सेकुलर नहीं है. जैसे फ्रांस की अगर बात की जाए, फ्रांस जो है वो टोटल सेकुलर कंट्री है, ठीक है. बट इन इंडिया वी आर अ क्वासी सेकुलर मैकेनिज्म, ठीक है ना. सो इन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म गिव रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, प्रमोट प्रोटेक्टिंग द रिलीजियस इक्वालिटी, ठीक है ना, रिलीजियस इक्वालिटी. और ये सेकुलर शब्द आया कहाँ से? मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट एक्ट. 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी. अब जैसे मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट से क्या हुआ? वी हैव एडेड दी फंडामेंटल ड्यूटीज. सो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया. और देखो क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में. उसे बहुत चीज़ें की, जैसे बताया फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की आर्टिकल 51A में, ठीक, 51A में. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्या किया? ISS को ऐड किया फंडामेंटल ड्यूटीज में. से आप प्रियम्बल पढ़ चुके हो ना, आप प्रियम्बल पढ़ चुके हो, और प्रियम्बल में आपने 3 शब्द पढ़े होंगे. क्या पढ़े होंगे? इंटीग्रिटी और सोशलिज्म एंड सेक्युलर. ये 3 शब्द ऐड किए गए इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाया द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन प्रियम्बल. कहाँ पे ऐड किए गए हैं?
ये प्रियम्बल में ऐड किया गया, याद रखिएगा प्रियम्बल में इसको ऐड किया गया, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये भी हमारा, दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ और इट इज ऑल्सो अ क्वालिटी ऑफ आर constitution. So what is the quality, what is the constitution, what is the quality? This universal adult franchisee or universal adult suffrage, this means right to vote, means right to vote. So right to vote, we have given the right to vote to every people, whether he is poor, whether he is rich, whether he is thin, whether he is fat, okay, whether he is younger or whether he is older. So we have given the right to cast vote to every people, and earlier this age was 21 year and we have reduced this age to 18 years, okay, via the 61st Amendment Act of 1988. This got implemented in the 1989, hence earlier I have stated 61st Amendment Act 1989, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी सिंगल सिटीजनशिप। इन इंडिया वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो हम स्टेट के सिटीजन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप अरुणाचल के भी सिटीजन है, आप इंडिया के सिटीजन नहीं, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज द परफेक्ट थिंग। बट इन यूएसए you have, in the USA you have the citizen of the USA also and state also. Let's say you are living in the Los Angeles, so you are the citizen of Los Angeles also and you are the citizen of the USA also. But in India we have only the single citizenship. This was the concept. Independent body. So in India there are a lot more independent bodies, as we have stated, as I have stated, the Election Commission of India under Article 1 to 4, sorry, under Article 3 to 4, 324, ठीक है। अंडर आर्टिकल 3 to 4 वी हैव मेंशन द इलेक्शन कमीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीएससी है ना, यूपीएससी इज मेंशन अंडर 1315, 315 में यूपीएससी को मेंशन किया गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, दिस इज मेंशन इन 148। इन शॉर्ट फॉर्म दिस इज नोन एज द कैग इसको बोलते हैं। कैग इज द आई एंड ईयर ऑफ द पब्लिक पर्स। इसको क्या बोलते हैं, कैग को बोलते हैं आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक पर्स। कहने का मतलब ये पूरा लेखा जो रखता है, ठीक है ना। दिस मेक दिस पर्सन कैग जस्ट हैव ऑल द अकाउंट्स कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, खर्चा हो रहा है, इसका सारा ध्यान रखता है। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी प्रोविजन। एज सेड इन द इंडिया वी हैव द इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है ना। दिस इमरजेंसी प्रोविजन दे आर बोरोड फ्रॉम द जर्मनी, ठीक है। नाउ इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। द फर्स्ट वन इज द नेशनल इमरजेंसी, नेक्स्ट इज द स्टेट इमरजेंसी which is mentioned in the 356, and third is the financial emergency 360. So national emergency 352, ठीक है ना। अगर बात करें इन इंडिया अभी तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी लगी है। फर्स्ट इन द 1962, सेकंड 1971 एंड 1975। 1962 वॉर विद द चाइना, 71 पीओके लिबरेशन वॉर ऑफ द बांग्लादेश एंड 75 इज द इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये 3 बार हुई थी और बाकी स्टेट इमरजेंसी कई बार लग चुकी है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी टिल नाउ अभी तक हमारे यहाँ पे नहीं लगी हुई है, ठीक है। 3 टायर सिस्टम हमारे यहाँ पे 3 टायर का सिस्टम है। 3 टायर का मतलब सिस्टम क्या हो गया, 3 टायर सिस्टम, 3 टायर गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, पहले हमारा सेंटर में, स्टेट में है और उसके बाद पंचायत में, विलेज में, यू कैन से। तो 3 टायर सिस्टम हो गया। सो दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसके द्वारा हमने क्या किया था, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को इनरोल किया था। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज क्या है, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी इनरोल किया था। सो पंचायत वाज एडेड इन दी पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 है, पार्ट 9 है, 73rd अमेंडमेंट है, ठीक। ये किसका है, ये दिस इज ऑफ द पंचायत। अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे इसकी, अभी तो बस सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। पंचायत में सब्जेक्ट कितने हैं, इन पंचायत वी हैव द 29 सब्जेक्ट है पंचायत में। म्यूनसिपैलिटी का भाई 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, है ना। अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटीज बोलते हैं इनको। और इसमें बेसिकली 12th शेड्यूल को ऐड किया गया एंड द पार्ट वाज पार्ट 9A। ये पार्ट 9 है, दिस इज द पार्ट 9A, ठीक है, दिस इज द पार्ट 9A। एंड नेक्स्ट लास्ट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये 16th नंबर है। अभी हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब हम 16 नंबर पे आ गए, विच इज द लास्ट पॉइंट, सेलिएंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। So in India we have a concept known as the cooperative society. What is the cooperative society? Basically, if the 2 people are coming together and they are making any sort of organization, that is the cooperative society. The best example of the cooperative society is the Amul. So Amul is the cooperative society made by the farmers of the Gujarat. ठीक है ना। तो इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि जब 2 लोग साथ में आते हैं तो एक और एक 11 हो जाता है, काइंड ऑफ,
ठीक है, तो ये कैसे ऐड किया गया? दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एडेड बाय द 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 एंड दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके और इज आल्सो मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(c) व्हिच इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है ना। डीपीएसपी में भी आर्टिकल 43B है, उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया है, उसका नाम लिया गया है। एंड देयर इज आल्सो with this amendment of 97th amendment 2011 a new part which is the part 9B was added. A new part which is the part 9B was added. Okay, and parliamentary power regulates the multi-state cooperative society, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको गवर्न करती है। ओके, नाउ टिल नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन so that I can move to the next topic which is the schedules. We have 12 schedules and we are going to discuss that thoroughly. Okay, with the mnemonics, I have a mnemonic for you here also. Will be helpful for you to memorize the things. ठीक है ना। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डू आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग अगेन। प्लीज लेट मी नो। सब समझ में आ रहा है? अगर सब समझ में आ रहा है प्लीज टाइप यस, प्लीज टाइप यस अगर सब समझ में आ रहा है तो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कोई चीज समझ में नहीं आई? यस, क्लियर्ड। ओके, थैंक यू तन्या चारू। ओके, एनीवन एल्स? किसी को कोई डाउट है? ओके, आई थिंक सब कुछ सही चल रहा है। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल्स। ठीक है, व्हाट इज द शेड्यूल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स है हमारे पास, मैंने बताया आपको वी हैव आर्टिकल ना, हमारे पास लगभग 450 500 तक, लगभग 450 है ना, 475 वी हैव द आर्टिकल टिल नाउ। ठीक, अब नाउ द थिंग इज यू कैन नॉट मेंशन एवरीथिंग इन द आर्टिकल्स, otherwise the constitution will become so bulky. Okay, you cannot mention everything in the articles, otherwise the constitution will become so bulky. So what we have done, we have classified the articles. Okay, articles को हल्का करने के लिए to make the constitution lighter we have made the schedules. So schedules are what? Schedules are okay. Sorry, please pardon me again. So what are the schedules? So schedules are, these are the artificial change made or the cosmetic change made to the constitution. So basically how many schedules we have? We have the 12 schedules. Okay, and this is the mnemonic I have mentioned here to memorize the schedules, which is very important. ठीक है ना। So first we'll go to the mnemonic only. पहले mnemonic पढ़ते हैं फिर सारी चीजें समझते हैं। mnemonic क्या है? mnemonic is US or S43R PM. If you go if you search in the website है ना, Google में सर्च करोगे, you going to find lot of mnemonics. ठीक है ना, you going to find lot of mnemonics, but this is my own mnemonic. ठीक है ना, and definitely you going to love it. US or S43R PM. Okay, U is what? U is the Union and Territories. Union and Territories. So in the first schedules, it is mentioned about, they have mentioned about the Union and Territories. Union and Territories. Okay. In the next schedule, they have mentioned about the salaries of the MPs. Okay, MPs और MLA की salaries के बारे में बात किया. US. Okay, second schedule. Okay. In the third schedule, they have mentioned about the oath. Okay, and in the fourth schedule they have mentioned about the seats of the Rajya Sabha. R matlab seats of Rajya Sabha. And in the fifth schedule they have mentioned about the scheduled area. Okay, and in the sixth schedule, this is the sixth schedule. Okay, I have not mentioned it. This is the sixth schedule. So in the sixth schedule they have mentioned about the scheduled tribal area. This fifth one, let me change the color. This fifth one is the scheduled area. ठीक है ना, जिसमें scheduled area आएंगे. scheduled area कहाँ पे? पूरे इंडिया में, throughout the India there are lot more scheduled area. बहुत सारे एरिया हैं जो scheduled area की कैटेगरी में आते हैं, जिनका प्रोटेक्शन किया जाता है. ठीक है ना, वो scheduled area हो गए. But in the sixth schedule this is special treatment. यहाँ पे special treatment मिला हुआ है. कितने राज्यों को? 4 राज्यों को. There are only 4 states which have got the status of the scheduled area.
शेड्यूल्ड ऑटोनॉमस एरिया कौन कौन से हैं? इसको याद करने का तरीका क्या है? असम ATMM, 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 असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, या AMTM, कैसे भी याद कर लो। मुझे ये वाला अच्छा लगता है। आई लाइक द फर्स्ट वन, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। These are the 4 states which are mentioned under the Schedule 6। तो आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, कई बार PYQ में भी आ चुका है, PYQ में भी आ जाएगा, वो पूछ लेंगे। सबसे पहले वो पूछेंगे कि what is the difference between the 5th and 6th schedule? What is the difference between the 5th and 6th schedule? So 5th schedule, it talks about the scheduled area. 5th schedule, it talks about the scheduled area, and scheduled area, it is throughout the country of the India। शेड्यूल्ड एरिया कहाँ पे है? शेड्यूल्ड एरिया थ्रू आउट द कंट्री ऑफ इंडिया, हर जगह पे है। बट शेड्यूल, दिस 6th शेड्यूल, दिस इज स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, तो 6th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ओके, असम, त्रिपुरा एंड मेघालय एंड मिजोरम। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को 5th और 6th शेड्यूल के बीच के डिफरेंस। नेक्स्ट इज दी US हो गया हमारा, US, और S43, S हो गया, 40 हो गया, 4 हो गया, और 3 में क्या आएगा? 3 में 3 चीजें आएंगी, 3 L आएंगे, 3L। कौन कौन से? एक है हमारा, फर्स्ट इज आर लिस्ट, लिस्ट, लैंग्वेज एंड लैंड। लिस्ट 3 तरह की लिस्ट होती है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट है, हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। सेंटर की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। concurrent list. What are these list? Center list मतलब in this list those subjects are mentioned over which the center can make the laws. State list, those subjects are mentioned in the state list over which the state can make laws. For example, central list, if there's a topic of cyber security or topic of nuclear technology, तो center can make the law. ठीक. State list, police, okay, और land related issues, है ना, mentioned under the state list, so state can make the laws. Concurrent list, those lists under which the state and center both can make the laws. For example, education, so education is the subject which is mentioned in the concurrent list, so means the center and the state both can make the laws on the education. Got it? So list, this is the list is mentioned under the, अब यहां तक कितना हो गया था हमारा? ये हो गया 1 2 3 4 5, अब ये हमारा है, ये हो गया 6, ठीक, अब ये है 7, 7th। तो लिस्ट मेंशन है 7th शेड्यूल में। 8th में क्या मेंशन है? 8th में मेंशन है लैंग्वेज, ठीक है ना। सो देयर आर 22 लैंग्वेजेस, है ना, 22 जो है 22 लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मेंशन है। 22 लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, और 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, 6 आर क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है। और उस 6 लैंग्वेज में 4 लैंग्वेज और ऐड कर दी गई हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? लिस्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, और उसके बाद आता है लैंड के रिलेटेड लॉ बनाया गया है, ठीक है ना। और लैंड रिलेटेड लॉ सबसे पहले बनाया गया था, क्यों? टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड करने के लिए। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान में वाज हैपन फॉर दी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लैंड, क्योंकि देवर लॉट ऑफ दी आसामीज, बड़े बड़े जमींदार थे, उनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड थे। तो हम लोगों ने क्या लगा दिया? लैंड सीलिंग लगा दिया। क्या कर दी? लैंड सीलिंग लगा दी, कि अब आप मान लीजिए किसी के पास 1000 एकड़ का लैंड है, ठीक है ना, तो हमने बोल दिया कि नहीं, आप 100 एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकते। सो दिस इज व्हाट, दिस इज दी लैंड सीलिंग। तो समझ गए? तो ये हो गया, लिस्ट हो गई हमारी 7th, दिस लैंग्वेज इज द 8th एंड दिस लैंड इज द 9th। 10th में क्या आता है? 10th में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ए फॉर एंटी, ये है 10th में। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ मीन्स दैट दिस इज, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी हॉर्स ट्रेडिंग। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? इन हिंदी दिस इज नोन एज दी MLA MP खरीद फरोख्त। जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि कई लॉट मोर MLAs दे जस्ट मूव फ्रॉम दी वन पार्टी टू अदर पार्टी, दे जॉइन द अदर पार्टी। सो these things happen very usual, very commonly. So this is known as the horse trading. So to prevent this, the parliament has passed the law. This is known as the anti-defection law. दल बदलू नियम, यानी कि no MP can just move just like that from one party to the other party. And this was introduced by the 52nd Amendment Act of 1985. ठीक है, उसके बाद आता है पंचायत
तो ये कितना हो गया, ये 10th में हो गया। 11th शेड्यूल में दिस मेंशन ऑफ द पंचायत, आई ऑलरेडी टोल्ड यू पंचायत इट इज मेंशनड इन द 11th शेड्यूल एंड इन द पार्ट 9, पार्ट 9, ठीक है ना। एंड म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी इट इज मेंशनड, इट इज द नॉट पार्ट, दिस इज मेंशनड इन द पार्ट ए। सो पार्लियामेंट किसमें मेंशन है, पार्लियामेंट मेंशन, सॉरी पंचायत किसमें मेंशन है, पंचायत मेंशन है पार्ट 9 में, जिसमें पंचायत में सब्जेक्ट कितने, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द पंचायत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, कि कितने सब्जेक्ट में पार्लियामेंट पंचायत लॉ बना सकती है। सो देयर आर 29 सब्जेक्ट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द पंचायत एंड पंचायत दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ओके, एंड इट इज मेंशन्ड इन द 11th शेड्यूल, बट पार्ट कौन सा है, पार्ट पार्लियामेंट का आर्टिकल का पार्ट 9। In the same manner, the municipality, it is mentioned in the part 9A. Municipality, it is mentioned in the part 9A. Okay, but schedule is the 12th schedule, 74th Amendment Act 1992. Okay, so these are the 12 schedules. ये कितने schedules हो गए, 12 schedules हो गए हमारे, ठीक है, 12 schedules हो गए। सबसे बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल, क्या बात करता है फर्स्ट शेड्यूल, जैसे हमने बताया यूनियन एंड टेरिटरी, फिर से इसमें एक बार देख लो फर्स्ट शेड्यूल क्या बात करेगा। फर्स्ट शेड्यूल यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में, सेकंड एस फॉर यूएस, एस फॉर सैलरीज, ओ आर, ओ ओथ, आर इज सीट्स और राज्यसभा। फिफ्थ इज दी शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया जो पूरे इंडिया में है, बट शेड्यूल्ड ऑटोनॉमस एरिया या ट्राइबल एरिया वो सिर्फ 4 राज्यों में है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। फिर हम बात करते हैं, ये हो गया 6, फिर 7 में आएगा क्या, लिस्ट, लैंग्वेज और लैंड। 8 में आ जाएगा 8 लिस्ट, लैंग्वेज और लैंड, 7, 8, 9, 10 में आ जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ, फिर पंचायत 11 और म्यूनसिपालिटी 12, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट शेड्यूल में किसके बारे में, स्टेट और टेरिटरीज ऑफ यूनियन, यानी कि कहाँ कहाँ पे हमारी टेरिटरीज है, कौन कौन सा जो राज्य है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया में आती हैं। नेक्स्ट सेकंड में बात करते हैं सैलरी एमोल्यूमेंट्स। अब किस किस की सैलरी के बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द सैलरीज ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ओके, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हमने एमपी के बारे में बात नहीं की है, प्लीज पे अटेंशन, क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्या आएगा पूछेगा, इसमें एमपी आता है क्या, नो एमपी नहीं आता इसमें, एमपी इसमें नहीं आता। सो हियर सेकंड में क्या बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दी सैलरीज ऑफ द गवर्नर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लोकसभा, ठीक है ना, एंड राज्यसभा ऑल्सो। और जो कोर्ट के जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, और कैग जो होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ओके, 148 आर्टिकल 148 आर्टिकल साथ साथ लेके चलने हैं, अदरवाइज आर्टिकल एक दिन में याद नहीं होगा, ठीक है, यू नीड टू टेक इट साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब एमपी एमएलए इसमें मेंशन नहीं है, सेकंड शेड्यूल में एमपी एमएलए मेंशन नहीं है, तो कहाँ मेंशन है, एमपी एमएलए जो मेंशन है वो कहाँ पे मेंशन है, इट इज मेंशन इन दी थर्ड शेड्यूल, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है ना, ऑफ द एमएलए एंड दी एमपी एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड प्लीज पे वन मोर टेंशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कैग है और जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये दोनों जगह मेंशन है, कहाँ कहाँ पर ये मेंशन है, कहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो मेंशन है, ये देखो मेंशन है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर भी मेंशन है, यानी कि सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल दोनों जगह ये मेंशन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पर एमपी और एमएलए सिर्फ थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, सीट ऑफ राज्यसभा बता चुके। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है शेड्यूल्ड एरिया एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब, फिफ्थ शेड्यूल, और ये क्या है, ये पूरे इंडिया में है, हर जगह है इंडिया में, पूरे इंडिया में। बट सिक्स शेड्यूल में क्या है, ट्राइबल एरिया विच इज प्रेजेंट ओनली इन द ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, है ना, मार्क बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सेवेंथ में क्या है, सेवेंथ में है आपकी लिस्ट, है ना, लिस्ट कौन से, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन में यूनियन बनाएगा, स्टेट में स्टेट बनाएगा, कॉन्करेंट में दोनों बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ठीक। नेक्स्ट इज द एट्थ शेड्यूल, मैंने बताया वी हैव द 22 लैंग्वेजेस। एट शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22। अब मैं तुमको निमोनिक बता रहा हूँ, ऐसा बता दूंगा कभी भूलोगे नहीं आप। इन एट शेड्यूल यू विल नेवर गोइंग टू फॉरगेट एंड यू विल ऑलवेज गोइंग टू थैंक मी कि सर ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। सो इन द एट शेड्यूल वी हैव 22 लैंग्वेजेस। नाउ हाउ टू मेमोराइज दीज लैंग्वेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द एट शेड्यूल वी हैव 22 लैंग्वेजेस। इनिशियली जो लैंग्वेज थी वो कितनी थी, इनिशियली देवर 14 लैंग्वेजेस ओनली। ये भी पूछ सकता है आपसे कि इनिशियली कितनी थी, इनिशियली देवर 14 लैंग्वेज ओनली। फिर ये 22 कैसे बनी, याद करते हैं। सबसे पहले 21st अमेंडमेंट हुआ 1967 में, और सिंधी लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया, सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड, ठीक है सर। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इसके बाद आपको याद रखना है कि नमक आप खाते हो ना, सॉल्ट आता है 71 रुपए का, 71 रुपए का। नमक कितने का आता है, 71 रुपए का। सर इतना महंगा, हाँ। 71st अमेंडमेंट हुआ 1992 में, और वहां पे ऐड किया गया क्या, नमक नेपाली
मैनपुरी और कोंकणी, नेपाली, मैनपुरी और कोंकणी, न म क, नेपाली, मैनपुरी और कोंकणी। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट हुआ 2003 में, उसमें क्या ऐड किया गया, उसमें क्या किया गया, BHSM। सर ये क्या है, बताता हूँ सर ये क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये है बी मतलब भाई, M मतलब महेंद्र, और S मतलब सिंह, और D मतलब धोनी, भाई महेंद्र सिंह धोनी, भाई महेंद्र सिंह धोनी। तो अभी कभी नहीं बोलोगे, तो यानी कि 92nd अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड हुआ, महेंद्र सिंह धोनी, बी मतलब बोडो, M मतलब मैथिली, एंड S मतलब संथाली, एंड D मीन्स डोंगरी। ठीक है, इन लैंग्वेज को ऐड किया गया, और 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011 से उड़िया लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा 6 क्लासिकल लैंग्वेज भी हमारे यहाँ पे। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब जिसका ओरिएंटेशन कल्चर से उसके से है, कौन कौन सी है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। इसके अलावा 4 लैंग्वेज को, 5 लैंग्वेज को और ऐड किया गया है, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज और बंगाली, इनको भी ऐड कर दिया गया है। अभी तक सिर्फ 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, अब इनको भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल मैंने बताया कि लैंड रिलेटेड है। लैंड रिफॉर्म जो है सबसे पहले किया गया था, इसीलिए इसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 से इसको एक्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ, ताकि एक जगह से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में एमपी ना जाए। दिस फॉर दिस वी हैव द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। नेक्स्ट इज द पंचायत। Now, for the panchayat, we have the part 9. Panchayat is included in the part 9, and municipalities is included in the part 9A. ठीक, नाउ 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट। सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे, 29 सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक, नाउ सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे, स्टेट बीसीएस में कई बार पूछा हुआ है। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो चीज़ें हमने ली हैं वो कहाँ कहाँ से ली हैं। जैसे मैंने बताया था, इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी हैव टेकन ऑल द गुड थिंग्स दैट आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज, है ना। नाउ सो व्हाट थिंग्स वी हैव बोरोड फ्रॉम वेयर, सम इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में विल टॉक अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया था कि a large chunk of the constitution of the India is that something that we have borrowed from the government of India Act 1935. ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल द इमरजेंसी प्रोविजन वी हैव बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेलिंग, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब हम लेके आए कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ब्रिटेन से क्या लिया, ब्रिटेन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमने ली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों ली, मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे ऑलरेडी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से, इसलिए हमने उसको ले लिया। ठीक, नेक्स्ट इज दी रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ इज समथिंग दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। व्हाट इज द रूल ऑफ द लॉ, कि जो रूल होगा उसी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ द लॉ यानी कि रूल कौन करेगा, रूल कौन करेगा, रूल करेगा लॉ। ठीक है, रूल ऑफ द लॉ। एंड रिट्स वी हैव टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश। रिट्स बताया था आर्टिकल 32 में रिट्स आती हैं, और अंडर द रिट्स तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32। बट हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। पर हाई कोर्ट जाओगे फंडामेंटल राइट के लिए भी और लीगल राइट के लिए भी। ठीक है, लीगल राइट के लिए भी, दोनों के लिए। पर ये सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट के लिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये भी आंसर लिए हुए हैं। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली हमने, सर वी हैव टेकन द सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम द ब्रिटेन। क्यों, क्योंकि यूएस में देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डुअल सिटीजनशिप, बट इंडिया अलाउज द सिंगल सिटीजनशिप। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म मीन्स लोकसभा एंड द राज्यसभा, है ना, वही पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट वी हैव टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन, बिकॉज वी हैव दी नॉलेज कि वो काम कैसा करता है, 150 साल से हम देख रहे थे। एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैसी चीज़ें काम करेगी। नेक्स्ट, यूएस से क्या लिया, फंडामेंटल राइट वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएस। और यूएस में देयर वाज अ लॉ नोन एज द बिल ऑफ राइट। यूएस में एक चीज़ थी को बोलते थे बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट को ही यूएस का फंडामेंटल राइट बोलते थे, एंड वी हैव बोरोड दिस इज फ्रॉम द यूएसए। नेक्स्ट इज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। You know that in the Article 61, there's a mention of the term known as the impeachment. Now, what is the impeachment of the president? So, if the president has done some blunder, so he can be impeached. Impeach means a proceeding can be initiated against him. ठीक है ना, and then if this proved to be valid, then he has to resign from his post. ठीक है ना,
उसके लिए फ्लोर टेस्ट भी एक प्रोसेस होता है, फ्लोर टेस्ट। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट है उसको हट रही है, यानी कि तो प्राइम मिनिस्टर जो होंगे उनको फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस इज ऑल्सो मेंशन द इज ऑल्सो दैट इज व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएसए। ठीक है ना। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, आई टोल्ड यू द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड जुडिशरी इज समथिंग विच इज पुटिंग द क्रॉस चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है ना। सो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक। नेक्स्ट इज द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, आई टोल्ड यू, जुडिशियल रिव्यू टू मेक द चेक्स एंड बैलेंस, है ना, ऑन द लेजिस्लेचर। एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज दीज ऑल थिंग्स वी हैव बॉरोड फ्रॉम द यूएसए। आयरलैंड से क्या लिया? सबसे इंपॉर्टेंट, आयरलैंड से लिया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51, 36 to 51। ठीक। नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा विच इज द परमानेंट हाउस एंड मेथड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, मेथड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वी हैव बॉरोड फ्रॉम द आयरलैंड। डोंट नीड टू वरी अबाउट, आई विल गिव यू द पीडीएफ, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सो इन इंडिया वी हैव द फेडरेशन बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर स्ट्रॉन्ग है हमारा। ठीक है ना। एंड रेसिडुअरी पावर इज समथिंग दैट वी हैव बॉरोड फ्रॉम द कैनेडा। नाउ व्हाट इज द रेसिडुअरी पावर्स? सो आई टोल्ड यू कि some powers rest with the center, some power rest with the state. So if there's a new power arises, कोई नया टॉपिक आ गया, जैसे हमने है ना, हमारे पास सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इन द कॉन्करेंट लिस्ट बोथ कैन मेक द लॉज, बट लेट्स से एक नया लॉ निकल गया, फॉर एग्जाम्पल एक लॉ निकल के आया नोन एज द क्रिप्टो करेंसी। ठीक है ना। और दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो कहीं पर नहीं मेंशन है, फॉर एग्जांपल। सो इट विल बी अ रेसिडुअरी पावर एंड इट विल बी रेस्टेड विद द सेंटर। ठीक है ना। सो रेसिडुअरी पावर्स आर दोज पावर्स विच आर रेस्टेड विद द सेंटर। अर्लियर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस वाज द रेसिडुअरी पावर रेस्टेड विद द गवर्नर जनरल। ठीक है ना। वो पहले किसके पास रहती थी? गवर्नर जनरल के पास रहती थी। नेक्स्ट है दी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट। ये सब कहाँ से लेके आए? कनाडा से लेके आए। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट मैंने बताया ना, कॉन्करेंट लिस्ट द लिस्ट ऑन विच द स्टेट एंड सेंटर बोथ कैन मेक द लॉस। सो कॉन्करेंट लिस्ट इज समथिंग दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। फ्रीडम ऑफ द ट्रेड ऑन कॉमर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए है। जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, लेट्स से इफ वी आर मेकिंग एनी लॉ एंड द कॉन्करेंस ऑन द लॉ वाज नॉट मेड एनी हाउ, वो बन नहीं पा रही है, तो अब क्या करेंगे? हम सबको साथ में लेके आएंगे ना, बैठा लेंगे, बात करेंगे, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 108। सो अंडर द आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज मेंशन्ड। नाउ ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको कॉल करते हैं, बट इट इज प्रेसाइडेड बाय द स्पीकर। स्पीकर जो है वो बैठेगा उसमें, चेयर पे वो बैठेगा, पर कॉल कौन करेगा? इट विल बी कॉल्ड बाय दी। एक और यहाँ से पीवाईक्यू भी बनता है, पीवाईक्यू भी बनता है क्या, कि जो ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए ज्वाइंट सेटिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो लोकसभा का जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, वो ज़्यादा हैं, राज्यसभा के कम हैं, तो उस कंडीशन में लोकसभा वाले इनको पास करा देंगे, इसलिए नहीं कर सकते इसको, ज्वाइंट सेटिंग को। समझ गए? सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, है ना, ये जर्मनी से लिया हुआ है। नेक्स्ट इज दी फंडामेंटल ड्यूटीज विच इज मेंशन इन द 51A, जो कि इंट्रोड्यूस किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसको ये कहाँ से ली गई है? दिस इज व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम द रशिया। फ्रांस से वी हैव टेकन द फ्रांस में देयर वाज अ लिबरेशन वॉर गोइंग ऑन, and then hence we have taken the liberty, equality and the fraternity from the France. Liberty, equality, fraternity from the France. These are the words that you must have witnessed in the preamble से आपने पढ़े होंगे। साउथ अफ्रीका से क्या लेके आए हम लोग? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करते हैं? विच इज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 368। ठीक है, 368 एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विच इज टेकन फ्रॉम द जापान। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब क्या होता है कि हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो लॉ ने बनाया है। ठीक है ना। बट कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो लॉ वैलिड ना हो उस पर। ठीक है, लेट्स से कोई एक डिसेबल्ड पर्सन है या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उस पर वही लॉ लगा रहे हो तो हो सकता है वो लॉ एप्लीकेबल ना हो। सो हेंस देयर वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें क्या होता है कि आप ये देखते हो बेसिकली कि वेदर दैट लॉ विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग इज अप टू द एज, is that law that we are implementing now, is it relevant to the current time? क्या अभी वो वैलिड है? बात समझो। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में सबको मास्क लगाना था, ठीक है ना।
और जो नहीं लगा के जा रहा था तो गड़बड़ हो रहा था, उसको डांटा जा रहा था। या कोविड में आसपास 2 3 4 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, है ना, ग्रुप बना के, तो उसमें अगर कोई खड़ा हो रहा था तो उसको पुलिस डंडे से आके मार रही थी। बट लेट से अभी यही हो, अभी 4 5 लोग खड़े हो पुलिस डंडे से मारने लगे तो गलत हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सो वी हैव टू चेक इट आउट whether the law that is implementing that we are implementing now is applicable, is justiciable, is reasonable। उसी को बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो दिस was interpreted from the article 14, है ना, एंड दिस वाज टेकन फ्रॉम द यूएसए, सो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द यूएसए, ठीक है ना। एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। तो मेनका गांधी, यू नो इट वेरी वेल, शी इज वेरी फेमस पर्सनालिटी। सो मेनका गांधी का पासपोर्ट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब्त कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जब, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब्त कर लिया था, उसको ले लिया था, सीज कर लिया था, सीज कर लिया था, ठीक है। तो शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड शी आस्क्ड फॉर द पासपोर्ट टू बी हैंडेड ओवर टू हर। तो उस समय दिस कॉन्सेप्ट अराइजेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नाउ आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ओके। अभी किसी को कोई दिक्कत है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक काम करते हैं प्रियम्बल तक पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके आगे आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रियम्बल अभी अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है, अभी टाइम है, हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लेकिन आज हम प्रियम्बल पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रियम्बल में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन द प्रियम्बल। अभी तक कोई दिक्कत है किसी को बताए? अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग द प्रियम्बल। कोई समस्या, कोई परेशानी? अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, टाइप यस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो, कुछ समझ में नहीं आया जस्ट लेट मी नो, ठीक है। देन स्टार्टिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। प्लीज टेल मी। ओके, ठीक है, सब कुछ सही है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रियम्बल, ठीक है। नाउ सो व्हाट इज द प्रियम्बल? देखो कोई किताब जो होती है ना, इफ देयर इज अ बुक, बुक का जो पहला कवर होता है उसको बोलते हैं फेस, या आपका जो चेहरा है उसको बोलते हैं आप फेस, ठीक है। तो उसी तरह बुक का जो पहला पेज है उसको बोलते हैं प्रीफेस। हर बुक का जो पहला पन्ना होता है, फर्स्ट पेज ऑफ द बुक इज नोन एज द प्रीफेस। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके। बट द बुक which we have, which is the holy book of the land, holy book of the land, which is sacrosanct, which is sacrosanct. Which book I'm talking about? I'm talking about the Constitution of India. So this Constitution of India, which is the holy book, which is the sacrosanct, which is the book of the law of the land. Okay. The first page of this book is known as the preamble. बस इतना सा है। हर बुक के पहले पन्ने को प्रीफेस बोलते हैं, बट द बुक ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड of India is known as the preamble. Got it? Now in the preamble a lot more things are written. ठीक है ना। सबसे पहले there was confusion also that whether the preamble was the part of the constitution or not, whether the preamble was part of the constitution or not. But in the केशवानंद भारती केस, KBC, क्या बोलते हैं उसको? KBC, केशवानंदन भारती केस, केशवानंदन भारती केस, ये कब आया था? ये आया था 24 अप्रैल 1973। अगर आप में से कोई क्रिकेट का फैन है तो उसको पता होगा दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी डेट को सचिन तेंदुलकर बॉर्न हुए थे, ठीक है। नाउ सो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केशवानंदन भारती केस, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड यस द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, अंडर द आर्टिकल 368, if the constitution can be amended under the article 368, hence the preamble can also be amended under the article 368, and hence we have amended the preamble under the article 368, okay, via the 42nd amendment act of 1976, and we have added, जो मैंने बताया अभी, ISS को ऐड कर दिया गया, that is the integrity, socialist और secular, integrity, socialism, socialist एंड सेक्युलर, इन 3 शब्दों को ऐड कर दिया गया। बात समझ गए इतनी? ओके। नाउ टॉकिंग ऑफ द प्रियम्बल, सो लॉट ऑफ द पीपल हैव गिवन देयर डेफिनेशंस रिगार्डिंग द प्रियम्बल। दे सेड मेनी थिंग्स अबाउट द प्रियम्बल, कि प्रियम्बल ऐसा है, प्रियम्बल वैसा है, प्रियम्बल कैसा कैसा है। नाउ तो यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ द डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पर्सन नोन एज द एन ए पानकीवाला, and he stated that the preamble, it is the identity card of the constitution,
है ना, it is the identity card. So without it you can't have the access to into the length and breadth of the constitution. So it is the identity card. It's like you have the identity card to enter into the class. Next is there one more person known as the K.M. Munshi, and he said that it is the horoscope. You know horoscope, which tells the future. So it is the horoscope of the sovereign democratic republic. Horoscope of the sovereign democratic republic. Now the question arises, how the preamble came into form. वो आया कैसे? So there was a person, obviously our first prime minister, our beloved prime minister, the Jawaharlal Nehru. So Jawaharlal Nehru introduced the objective resolution. Objective resolution. So objective resolution, it is nothing, it is a blank, it is a paper, है ना, it is a paper which has written all these things. क्या लिखा था उसमें? लिखा था कि what is the objective of this constitution. ठीक है ना. So Nehru introduced a paper known as the objective resolution. ठीक, objective resolution on 13th of December 1946, और इसको अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को. This objective resolution later become the preamble. ठीक, this objective resolution later become the preamble. So you got it, how the preamble came into force. So preamble was nothing, it is an objective resolution by the Jawaharlal Nehru. Later on this become the preamble, and this date is very important. Mark this date. This could be asked in the examination. ठीक है, this could be asked in the examination. Okay, so it is based on the objective resolution. It is based on the objective resolution. ठीक है ना, and not the source of the power to the legislature, not the prohibition upon the power of the legislature. इसका मतलब क्या है? The preamble is neither the source of the power, even it is the source of power. यहाँ पे तो उतना अच्छा नहीं लिखा हुआ. सुप्रीम कोर्ट said it is the source of the power, है ना. So but directly कोई source of the power नहीं है. So you can draw the analogy. You can draw the analogy that it is the source of the power. Okay, and ये prohibit भी नहीं करता, पर ये करता भी है. So if you have, the thing is, let's say if you have any doubt, if the judiciary has any doubt that how we should function, okay, so if the judiciary has any doubt how we should function, they can have a glance over the preamble. So preamble will give them the way how they should behave. It is non-justiciable. Again this word come. So what I have told you already, justiciable. Justiciable is something that is justified. Means अगर उसका violation होता है, you can approach the Supreme Court. For example, fundamental right. So fundamental right, it is the justiciable. It is justiciable. So if it is violated, if anyone violates a fundamental right, you can approach the Supreme Court under Article 32. But the DPSP, the fundamental duties, these are non-justiciable. So you cannot approach the Supreme Court कि मेरी DPSP, मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज वायलेट हो गया, ऐसा नहीं कर सकते आप. ठीक, इन द सेम मैनर the preamble, it is non-justiciable. So you cannot approach the Supreme Court कि सर यहाँ पर ये वायलेट हो गया और यहाँ पर मजा नहीं आ रहा और हमारी फ्रीडम गवर्नमेंट ने छीन ली है, भगा देगा आपको. ठीक है. अब और बताया मैंने आपको 42nd अमेंडमेंट से इसको हमने अमेंड कर दिया था, क्योंकि केशवानंद भारती केस में बोल दिया गया था कि इट इज अमेंडेबल बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. नाउ विल टॉक अबाउट सम प्रोविजंस. देखो इन सबको आप पढ़ चुके हो लास्ट फर्स्ट क्लास में एज आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन, बट इवन दो आई विल टॉक अबाउट इट स्लोली. बहुत छोटे सा बात करूंगा. आई नॉट मेक दिस क्लास बोर्डम. नाउ सॉवरेन का मतलब क्या होता है इन हिंदी? इन लेमैन लैंग्वेज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन इज यू आर फ्री. ओके, द मीनिंग ऑफ सॉवरेन इज यू आर फ्री. कहने का मतलब क्या है कि यू डोंट हैव एनी एक्सटर्नल कंपल्शन. जैसे इन इंडिया राइट नाउ इंडिया इज फ्री. So India is not any under dependency or dominance. India is free in their own internal and external affairs. We can take the decision whatever we want. We can make the policy. जैसे पहले क्या था non-aligned movement नाम की ट्रीटी थी. So we have moved from non-alignment to the all-aligned movement. तो मेरी हमारी मर्जी है ना, मैं जो भी खाऊं मेरी मर्जी काइंड ऑफ. सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है ना कि सोसाइटी बनानी है हमें बढ़िया से, साथ में रहना, सबका साथ सबका विकास, अच्छे से रहना. कम्युनिस्ट नहीं बनना है हमें. सेक्युलर मैंने बताया इंडिया में टोटल सेक्युलर नहीं है. इंडिया इज नॉट अ टोटल सेक्युलर कंट्री. इंडिया इज नॉट अ ट्रू सेक्युलर कंट्री. फ्रांस इज द ट्रू सेक्युलर कंट्री. फ्रांस में एक लड़की गई थी और उसने मस्जिद के सामने कुरान जला दी. ठीक है, तो वो ट्रू सेक्युलर है. फ्रांस ने बुरखा बैन कर दिया, ट्रू सेक्युलर है. पर इंडिया इट इज अ क्वासी सेक्युलर. इंडिया इज अ क्वासी सेक्युलर. कहने का मतलब है इफ द गवर्नमेंट इज सीइंग और इफ द जुडिशरी इज सीइंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्शन और some sort of biasness towards one thing, for example सबरीमाला टेम्पल, ठीक है ना, तो वो इंटरवीन करेगी रिलीजन में आके कि नहीं
लेडीज जो हैं, द गर्ल्स, दे आर ऑल्सो अलाउड टू एंटर इनटू शबरीमला टेम्पल इवन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो वो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंटरवीन कर सकती है, अगर किसी रिलीजन में कोई प्रॉब्लम है तो इंटरवीन कर सकती है। सो in India we have the positive concept of secularism and this obviously introduced by the 42nd Amendment Act। बताया मैंने 42nd Amendment Act से क्या क्या आया था, ISS आया था, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब कि हम तो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते ही हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, और डेमोक्रेसी में तीन आएगी, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे आई थी, 326 से, राइट टू वोट से आ गई थी, ठीक है ना। और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये कौन लेके आ रहा था, डीपीएसपी लेके आ रहे थे, ठीक है ना। देन वी हैव द पॉपुलर सॉवरेंटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, कि जो भी लीडर होगा, लीडर होगा, ठीक है ना, लीडर जो गवर्नमेंट बनेगा वो उसको सपोर्ट कौन करेगा, लोग करेंगे, पीपल विल सपोर्ट, पीपल विल सपोर्ट, दिस इज नोन एज द पॉपुलर सॉवरेंटी। ओके, सो हाउ द गवर्नमेंट इज formed by the people। And in India we have the indirect democracy। Now there are two types of democracy, direct and indirect democracy। In India we have the indirect democracy। What is the meaning of indirect democracy? Indirect democracy का मतलब क्या होता है कि we don't directly elect the prime minister, है ना। the people directly don't elect the prime minister। first of all they elect the middleman, the MP, and these MP will elect the prime minister। this is known as the indirect democracy। but there are some countries which have the direct democracy, for example Switzerland, New Zealand or Ireland, so they have the direct democracy। ठीक है। रिपब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, सिंपली रिपब्लिक का मतलब इतना है, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जो है प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड है। पहले क्या था, पहले किंग क्वीन का कॉन्सेप्ट था ना, earlier there was the concept of king and queen, now we don't have any concept of king and queen। so we are republic, we are free and we have elected some person who is the head of the state। अच्छा, स्टेट के बारे में बता दूं थोड़ा सा, आप भूल जाते होगे, आप कभी कभी भी कंफ्यूज होते हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट के दो मतलब होते हैं, एक तो मैं अगर बात, जैसे स्टेट के कुछ भी मतलब ले सकते हो, जैसे एक होता है सॉलिड लिक्विड स्टेट, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ये भी स्टेट होती है, केमिस्ट्री में होता है। यहाँ पे संविधान के लिए क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसके लिए बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट का मतलब, बिहार भी स्टेट होता है, यूपी बिहार हो गया, अरुणाचल हो गया, आसाम हो गया, ये भी स्टेट है, ठीक है। उसके अलावा स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब नेशन से भी होता है, इंडिया इज अ स्टेट, इंडिया इज अ स्टेट। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो कि जितनी भी पीएसयू हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, वो सारी स्टेट के अंदर आती हैं, सारी स्टेट के अंदर आती है। अगर मैं इसको हटा दूं, इस वाले को, केमिस्ट्री वाले को, तो स्टेट की जो डेफिनेशन है वो दी गई है आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में। तो स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब नेशन भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है। स्टेट का मतलब जितनी गवर्नमेंट की पीएसयू हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोल इंडिया की बात किया, कोल इंडिया, तो कोल इंडिया जो है वो क्या है, इट इज़ अ स्टेट, इट इज़ अ स्टेट। बात समझिए, कोल इंडिया क्या है, स्टेट है, यूपी बिहार ये भी स्टेट है, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जैसे हेड ऑफ द स्टेट, तो स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, नेशन बात हो रही है, तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड दिस मच ओनली, ठीक। एंड पब्लिक ऑफिस इज ओपन टू ऑल। सो जस्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि जस्टिस हम तीन तरह का जस्टिस दे रहे हैं। कौन कौन सा जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे दे रहे हैं, 326 से दे रहे हैं, आर्टिकल 326, यानी कि राइट टू वोट, 61st आर्टिकल, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, 21 से 18 कर दिया। देन वी हैव द इकोनॉमिक एंड द सोशल जस्टिस। what it means, it means economic justice, for example we have the article 39C। so article 39C is what, to prevention of the concentration of the wealth। so the concentration of the wealth should not be prevented at a particular place। so this is what stated by the article 39C, ठीक है। सो अब ये क्या कर रहा है, अगर वेल्थ एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि, इसका मतलब हो गया कि ये प्रिवेंट कर रहा है क्या, ये फैसिलिटेट कर रहा है इकोनॉमिक जस्टिस को। दिस इज फैसिलिटेटिंग द इकोनॉमिक जस्टिस, ताकि सबको पैसा मिले। पर हॉबी क्या हो रहा है, 80% जो पैसा है वो टॉप 1% के पास है। सोशल जस्टिस है ना, सबको अच्छा इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। और इसी को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है, जब तक हम आपको लिबर्टी नहीं देंगे तब तक आपके पूरे जो फंडामेंटल, आपका पूरा विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था लिबर्टी का नाम पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट डिफाइंस द लिबर्टी, ठीक है। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द लिबर्टी। तो इसका जो आंसर था वो था अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। ये यूपीएससी में आया था 2019 में, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, यानी खुद को पूरी तरह से विकास करना खुद का, इट इज द लिबर्टी, है ना। जो भी आपको पसंद है वो करो, पर ऐसा नहीं है
है ना, इसमें कुछ देयर विल बी सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज इक्वलिटी, सब इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कई सारे आर्टिकल्स हैं, 14, 15, 16, 17 ये दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड, है ना, वी शुड नॉट फाइट अमंग ईच अदर, है ना, एंड वी हैव हेंस वी हैव फॉर द फ्रेटर्निटी वी हैव द सिंगल सिटीजनशिप, so that there is no discrimination between the people. Okay, and fundamental duties are also there that we should adhere to, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी निभानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रेम्बल, प्रेम्बल है क्या, प्रेम्बल का इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिक फिलोसफी मैंने बताया क्या, इफ जुडिशरी गॉट स्टक एनीवेयर so they can just delve into the details, delve into the wisdom of the preamble. So they are the fundamental values of the constitutions, and it unravels the mind of the constitutional forefathers. So whoever made the constitution are forefathers, okay, Baba Sahab and everyone, whoever is there, okay. So it unraveled their mind, that what was their thinking at that time when they were making the constitution. It is the soul of the constitution, it is known as the soul of the constitution. So preamble is the soul of the constitution, and Baba Sahab said that article 32 is the heart and soul of the constitution, which is the constitutional remedies, and article 21a, article 21 right to life, it is the heart and soul of the constitution in today's world. पर बाबा साहब ने किसको कहा था, बाबा साहब सेट ऑफ द 32 कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल, क्या क्या कंपोनेंट है, अथॉरिटी है, किसकी अथॉरिटी है, पीपल की, लोगों की अथॉरिटी है, मेड बाय द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, it is written there clearly, we the people of the India mentioned in the preamble, means this constitution is given by the people to the people, जन के द्वारा, ऐसे गाना गाते हैं, जन के द्वारा जन के लिए जनता का राज है, जन के द्वारा जन के लिए जनता का राज, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक। नेचर, इट हैज द नेचर ऑफ द सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सॉवरेन मीन्स वी आर इंडिपेंडेंट, सेक्युलर सोशलिस्ट है ना, सेक्युलर we don't have any state religion, democratic and republic means head of the state is elected. Objectives हमारी क्या है, justice, liberty, equality, fraternity, unity and integrity, and we have adopted it on the 26th of November 1959. And you also need to remember the sequence of this word, in what sequence these words are given in the constitution, you also need to remember, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। Next is the is preamble the part of the constitution? I already stated preamble is the part of the constitution which is stated in the KBC केशवानंद भारती केस of 1973, 24th of April में आया था, और इस दिन सचिन का बर्थडे भी था, सचिन तेंदुलकर का मतलब जन्म हुआ था। इट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960, ठीक है। बेरूबारी में कहा गया था कि preamble is not the part of the constitution, but in the केशवानंद भारती केस it is said by the Supreme Court, it is the part of the part of the Constitution. Even though Keshavanand Bharati case was this was the case by the शिरूर मठ, शिरूर मठ में एक सेंट थे, उनके द्वारा केस लगा गया था, ठीक है ना, बट अनफॉर्चुनेटली दिस केस वाज लॉस्ट बाय हिम, शिरूर मठ केस, ठीक, ओके, शिरूर मठ केस, ओके। लॉर्ड अयप्पा was the deity of that temple, लंबी कहानी है, I'll explain it later, ठीक है ना। बट कहने का मतलब है ये केस जो थे वो हार गए थे, even though this case become so popular, because in this case the government, the Supreme Court has given the basic structure of the constitution, this was given in the KBC case, and this is the most evolved thing, this is evolving day by day, the basic structure of the constitution is evolving day by day, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज दी LIC ऑफ इंडिया केस में बोला गया कि इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल तो हमने किया था, क्योंकि बिकॉज द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस वी हैव अमेंडेड द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, एंड वी हैव एडेड द 3 word ISS, दैट इज द इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये 3 शब्दों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। दिस यूटी, आज कितने पेजेस हुए, ठीक है, 5, ओके, 5-6 पेज हो गए। तो इस यूनियन टेरिटरीज को हम कल बात करेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से कल स्टार्ट हम करेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कुछ यू कैन जस्ट लेट मी नो। मज़ा आया है तो लिखिए कि द क्लास वॉज फेबुलस, यू कैन राइट, यू कैन अप्रिशिएट माई एफर्ट, ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट लेट मी नो, एंड दिस PDF यू गोइंग टू हैव इन योर चैट बॉक्स, और जो भी चीज़ें हैं आपको मेरी PDF मिल जाएगी, ठीक है ना।
इज एनोटेड पीडीएफ ऑल्सो, है ना, दोनों में सिंपल और ये पेन चली हुई पीडीएफ दोनों को मैं दे दूंगा. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट लेट मी नो. मज़ा आया प्लीज़ बता दीजिए. सबको सही है, समझ में आ रहा है अच्छे से. कल क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. सबसे पहले बताइए आप, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम. नई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ टाइप यू. यस, क्लास वॉज फैंटास्टिक. थैंक यू टैडी एंडी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द अप्रिशिएशन. और तानिया चारू जी, आपको समझ में आया क्लास? कोई डाउट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम लग रही हो, कुछ बता सकते हैं आप? कोई डाउट? सो आई होप सारा कुछ समझ में आया आपको, ठीक है. तो हमने आज कंप्लीट क्या कर लिया है, हमने टुडे वी हैव डन बिट फास्ट. पता है फास्ट इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा, चलो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस कवर, मतलब इतना चैप्टर कवर करना है. एंड वी आई थिंक वी हैव 13 to 15 क्लास. 13 to 15 क्लास, आई नो इट वॉज फास्ट, मुझे पता है. 13 to 15 क्लास, तो उसमें इतना सब कवर करना थोड़ा सा, बट आई विल ट्राई, ठीक है ना. क्लासेस बढ़वा लेंगे इफ इट इज़ एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना. थोड़ा सा बाकी कैचअप तो करना ही ना, ज़िंदगी में तो फास्ट थोड़ा रहना ही पड़ेगा ना. ठीक है. तो आज हमने क्या किया, हमने सिलेक्टेड फीचर्स कर लिए, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस और प्रीएम्बल, 3 चीज़ें कर ली. 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए एक क्लास में, है ना. काफ़ी फास्ट से गए थे हम लोग आज, अच्छा लगा. अब बाकी के हम चीज़ें करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं स्लो रखूंगा अपने आप को. आई ट्राई टू कंस्ट्रेंट माई वॉइस, कंस्ट्रेंट माई पेस, ठीक है ना. आई ट्राई टू लाइक मेक द सिनर्जी विद योर अंडरस्टैंडिंग, विद योर लेवल ऑफ लर्निंग. तो ठीक है, फिर मैं क्लास को ओवर करता हूँ. कोई और डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज आई एम जस्ट क्लोजिंग दी लाइव. कोई और डाउट हो यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं आप. जानिए चालू जी, सब क्लियर है? कोई सजेशन? और ठीक है, ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन. ओके, सो देन ओके, गुड नाइट तांडे एंडी. सो वी गोइंग टू हैव आवर नेक्स्ट क्लास, ओके, मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो एट द सेम टाइम. ओके, इफ देयर इज एनी चेंजेस वी विल लेट यू नो, ठीक है. सो थैंक यू फॉर द क्लास एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, and we'll meet you in the next class. Till then, take a goodbye. Thank you. Jai Hind.